ویلکم بیک۔ شہنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بتائیں کہ ضمن الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی جنگ اپنی پاور شو کرنے کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہی ہے۔ جلسہ گاہ میں انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے صدر پنجاب فیض اللہ کموکا اور ایم پی رائے تیمور بھٹی نے جلسہ انتظامات کا جائزہ لیا۔ پاکستان تحریک انصاف جنگ اور یوتھ ونگ کے عہدیداروں سے ملاقات کی اور انہیں جلسہ بہترین طریقے سے منظم کرنے کے لیے ہدایات بھی جاری کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا ہے کہ آج چیئرمین پی ٹی آئی کا مائی ہیئر اسٹیڈیم میں جنگ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ لاڑکانہ میں حالیہ ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے بعد 9 منتخب نمائندے میئرشپ اور چیئرمین حاصل کرنے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ کوئی میئرشپ کے لیے بےتاب تو کسی نے چیئرمین حاصل کرنے کی دوڑ لگا دی، جبکہ ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین کے لیے بھی کئی ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلیم رضا کی اس رپورٹ میں۔ لاڑکانہ میں حالیہ بلدیاتی انتخابات ہونے کے بعد میونسپل کارپوریشن کے لیے میئرشپ، ڈپٹی میئرشپ، ضلع کونسل کے لیے چیئرمین شپ، جبکہ نئے بننے والے 4 ٹاؤن کمیٹیز کی چیئرمین شپ حاصل کرنے کے لیے 9 منتخب نمائندے سرگرم ہو گئے۔ میونسپل کارپوریشن لاڑکانہ کی میئرشپ کے لیے انور علی لوہر، خیر محمد شیخ، شفیق چانڈیو کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈپٹی میئرشپ کے لیے محمد امین شیخ مضبوط امیدوار ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ضلع کونسل کی چیئرمین شپ کے لیے فریال ٹالپور کا بااعتماد ورکر اعجاز لگاری بھی مضبوط امیدوار ہے، جبکہ وائس چیئرمین شپ کے لیے سید ریاض علی شاہ بھی میدان میں اتر گئے۔ نئے بننے والے 4 ٹاؤنز کی چیئرمین شپ حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں میں دڑی ٹاؤن کی چیئرمین شپ کے لیے سابقہ ہوم منسٹر کے بھائی شاہ رخ سیال، وائس چیئرمین کے لیے اسد علی کھرل مضبوط امیدوار قرار، امپائر ٹاؤن کی چیئرمین شپ کے لیے وقار بھٹو، حیدری ٹاؤن کے لیے منور علی لوہر، سچل ٹاؤن کے لیے سرفراز کھوکھر سرگرم ہو گئے۔ دوسری جانب لاڑکانہ ضلع کے جو دیہی علاقوں کے ٹاؤنز ہیں، آریجا ٹاؤن کمیٹی کے لیے محسن آریجو، گیریلو ٹاؤن کے لیے منظور منگن، رتے دورو کے لیے لالا نظر محمد پٹھان کی چیئرمین بننے کے واضح امکانات ہیں۔ ٹوکری میں انڑ گروپ کے عبدالحمید جیسر، بارے ٹاؤن کمیٹی کے لیے بدردین ساریو مضبوط امیدوار ہیں۔ کیمرہ مین مدثر لاشاری کے ساتھ سلیم رضا، میٹرو 1 نیوز، لاڑکانہ۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ میونسپل کمیٹی کی جانب سے علائشیں اٹھانے کا گرینڈ آپریشن جاری رہا۔ گلی محلوں کی بروقت صفائی ستھرائی اور ساوریج کے نظام کو بہتر رکھنے کے لیے شہریوں نے ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم اور چیف ایگزیکٹو آفیسر میونسپل کمیٹی شفیق سعید بلوچ اور سینیٹیشن عملے کو خراج تحسین پیش کیا۔ بہاول نگر میں عید الاضحیٰ کے حوالے سے سینیٹیشن اور میونسپل کمیٹی کا عملہ پوری طرح متحرک نظر آیا۔ میونسپل کمیٹی کی جانب سے 6 مختلف علاقوں میں کوئک رسپانس کے لیے 6 پوائنٹس قائم کیے گئے۔ ان پوائنٹس پر عید کے تینوں روز میونسپل کمیٹی کے عملے ڈیوٹی پر موجود رہے۔ ان پوائنٹس کو قائم کرنے کا بنیادی مقصد قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد محلوں میں علائشیں اور گند کو فوری طور پر اٹھوا کر مقرر کردہ مقام پر ڈلوانا تھا، تاکہ شہر بھر کو گندگی، بدبو اور تعفن سے محفوظ رکھا جا سکے۔ جڑاوالا کے نوائی گاؤں میں عید کے روز مذہبی رنجش پر 2 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر نے لواحقین سے تعزیت کی۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے رانا اعجاز احمد سے۔ جی رانا اعجاز احمد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، مذہبی رنجش کی بنا پر عید قربان کے روز 2 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ ان کے لواحقین سے تعزیت کے لیے علامہ ابتسام الہی ظہیر اور دیگر علماء کرام مقتولین کے گھر پہنچے اور تعزیت کی۔ کینار روڈ پر واقع بلال مسجد اہل حدیث میں علامہ ابتسام الہی ظہیر، ایس ایس پی آپریشن فیصلہ آباد، ایس پی جڑاوالا نے مقتولین کے ایشو پر پریس کانفرنس کی۔ جس نے ایک انسان کو مارا ہے، اس نے ایک انسان کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کو مارا ہے، اور جس نے کسی مومن کو مارا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ، اس میں وہ لمبا عرصہ قیام کرے گا، اللہ کا اس کے اوپر غصہ ہوگا۔ سمجھتا ہوں کہ وہ جو 2 مظلوم شہید ساتھی ہیں، ان کے خون کے لیے آواز کو اٹھانا یہ ہمارا مکمل طور پہ حق ہے۔ ہم ملک کے اندر فرقہ واریت کو نہیں چاہتے، ہم ملک کے اندر فساد کو نہیں چاہتے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ مطلب جو بھی کیسز ہوتے ہیں مرڈر کے، اس کے پیچھے جو ہے نا پولیس اپنے تمام تر جو وسائل ہے گروہ کار لاتی ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ جو اریسٹ کے حوالے سے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آج ہی اس کو اریسٹ کریں۔ سر کوئی
بھی ہماری ایفرٹ ہم خالی نہیں چھوڑیں گے. ہر کوشش، ہر ایفرٹ، ہر وہ چیز جو ہم کر سکتے ہوں گے انشاءاللہ ہم اس کو ضرور انشور کرواتا ہوں میں آپ سب کہ ہم اس میں تمام تر ایفرٹس کو بروئے کار لائیں گے. تمام تیار ہیں انشاءاللہ، اور اگر خدا نہ آستہ قانون نے کو تساہل کی احتجاج کرنے کے بھی تیار ہیں انشاءاللہ. تاندلیا والا سے خبر شامل کریں کہ تاندلیا والا انتظامیہ کی عید کے ایام میں بہترین کارکردگی. چیف آفیسر تاندلیا والا اور سینیٹری انسپیکشن ڈاکٹر محمد یعقوب فیضی اور ان کی پوری ٹیم نے سارے شہر میں جانوروں کی علائشوں کا صفایا کر دیا. تاندلیا والا کے شہریوں نے ڈاکٹر محمد یعقوب فیضی اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ اس سے پہلے کبھی عید کے موقع پر صفائی اور ستھرائی کا انتظام اتنا نہیں دیکھا. ڈاکٹر محمد یعقوب فیضی چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن اسسٹنٹ کمشنر تاندلیا والا کی قیادت میں شہر کی صفائی ستھرائی کا نظام بہتر نظر آیا. موٹروے M4 پر سیکٹر کمانڈر نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس ایس پی جاوید اقبال چڑر نے ٹول پلازا جات پر عید کے پرمسرت موقع پر مسافروں میں تحائف تقسیم کیے ہیں. ایس پی جاوید اقبال چڑر نے ڈی ایس پی قمر شہزاد بھٹی اور ڈی ایس پی محمد حسن بھٹی کے ہمراہ شام کوٹ اور شاہ رخ عالم ٹول پلازا جات پر عید الاضحیٰ کی پرمسرت موقع پر شہریوں اور بچوں میں تحائف اور جوسز پیمپلیٹ تقسیم کیے. انہوں نے کہا کہ عید کے اس پرمسرت موقع پر چھٹی کے دنوں میں بھی اپنی فیملیز کو چھوڑ کر ہم مملکت خداداد کے شہریوں کے لیے آرام دہ اور محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے ملک کے طول و عرض میں قومی شاہراہوں پر موجود ہے. تحصیل سمڑیال میں موجود ہوں اور میرے ساتھ اس وقت سی او سمڑیال موجود ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علائشوں کے حوالے سے شہر میں یہاں گندگی کا کوئی نام و نشان ہمیں نظر نہیں. ابھی آپ کو بتائیں کہ چیف آفیسر سمبڑیال عمیر سلطان نے سارے شہر میں جانوروں کی علائشوں کا صفایا کر دیا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے یونس گجر سے. یونس گجر مزید آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. اس وقت میں تحصیل سمڑیال میں موجود ہوں اور میرے ساتھ اس وقت سی او سمڑیال موجود ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علائشوں کے حوالے سے شہر میں یہاں گندگی کا کوئی نام و نشان ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. اسی اعزاز میں انہوں نے یہ سب لوگ یہاں پر ٹی ایم اے کی طرف سے اکٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر سینٹری ورکر سے لے کے چھوٹے ورکر تک سارے ورکر یہاں پر موجود ہیں. یہ ساری مینجمنٹ کس طرح سنبھالی ہے یہاں پر ہمارے ساتھ سی او میونسپل کارپوریشن آف سمڑیال موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق ہم نے تقریباً عید سے عید الاضحیٰ کی صفائی مہم چاند رات سے رات 2 بجے سے سٹارٹ کی. 3 دن ہمارا یہ آپریشن چلتا رہا. اس آپریشن کے دوران ہم نے تقریباً 600 سے 650 کے قریب ٹن ہم نے ویسٹیج بھی اٹھایا. اس میں ہماری ٹیم، ہمارے سارے سینیٹری سٹاف اور ہمارے تمام آفیشلز نے بہت اچھا کام کیا اور شہر کی صفائی کے لیے بھرپور کوشش کی. ابھی یہ ہمارا ایک گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق یہ ہمارا ایک لاسٹ پیل ہے. اس لاسٹ پیل کے اندر ہم پورے شہر میں نکلیں گے. ہمارا پورا سٹاف ہمارا ساتھ ہم شہر میں نکلیں گے اور شہر میں جو کوئی تھوڑا بہت کسی قسم کی کوئی تھوڑی بہت بھی کوئی گنجائش ہوگی صفائی کی اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے. یہ ہمارا لاسٹ پیل ہے اور اس کے بعد ہم آفیشلی اس مہم کا اختتام کریں گے. اس کے بعد کل ہم ایک روٹین بزنس کی طرف واپس آئیں گے. جی جیسا کہ آپ نے جانا کہ ہمارے ساتھ سی او صاحب جو میونسپل کارپوریشن آف سمڑیال موجود ہیں. اس دفعہ ہمیں شہر بہت ہی صاف ستھرا دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر اس انتظامیہ کا یہاں کی عوام جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے بھی دکھائی دی ہے. جی موٹروے M4 پر سیکٹر کمانڈر نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس ایس پی جاوید اقبال چڑر نے ٹول پلازا جات پر عید کے پرمسرت موقع پر مسافروں میں تحائف تقسیم کیے. آپ کو بتائیں کہ ایس پی جاوید اقبال چڑر نے ڈی ایس پی قمر شہزاد بھٹی اور ڈی ایس پی محمد حسن بھٹی کے ہمراہ شام کوٹ اور شاہ رخ عالم ٹول پلازا جات پر عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر شہریوں اور بچوں میں تحائف، جوسز اور پیمپلیٹ تقسیم کیے. انہوں نے کہا کہ عید کے اس پرمسرت موقع پر چھٹی کے دنوں میں بھی اپنی فیملیز کو چھوڑ کر ہم مملکت خداداد کے شہریوں کے لیے آرام دہ اور محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے ملک کے طول و عرض میں قومی شاہراہوں پر موجود ہیں. اور موٹر وے پہ سیف بھی ہے. اینی ٹائم ہم کوئی ایمرجنسی ہو یا کچھ بھی ہو تو جسٹ ہیلپ لائن پہ کال کریں اور آ سکتے ہیں، ہیلپ کے لیے آ سکتے ہیں. عید پہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، بہت سے پردیسی اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم گفٹ ہیمپر دیتے ہیں تاکہ ان کی خوشیاں ہماری خوشیاں ہوں.
खबर शामिल करेंगे बिहाड़ी से। बिहाड़ी में सेंट्री वर्कर्स ने अलाइशे ठिकाने लगाकर अपना भरपूर किरदार अदा किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद मुमताज से। मोहम्मद मुमताज, मजीद आगाह कीजिएगा। और शहर से आए हुए लोग जो बल्दिया में काम करवाने के लिए आए हैं, आइए हम इनसे जानते हैं ये ईद कुर्बान के 3 दिन क्या डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी और सीओ बल्दिया रो नईम खालिद ने अलाइशें उठाने के हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से क्या इन्होंने अच्छा काम किया है या काम शहर में नहीं किया? आइए हम इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जावेद बिहाड़ी बल्दिया से बोल रहा हूँ और मेरी जनाब ये बड़ी खुशी की बात है कि पहली दफ़ा रो नईम ने और डिप्टी कमिश्नर ज़िला बिहाड़ी ने और एसी साहब ने, इन्होंने सब ने मिलकर एक टीम वर्क ऐसा किया है कि कभी भी आगे पीछे इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। अलाइशें जो उठाई गई हैं वो कहीं नज़र ही नहीं आ रही और उसके बाद जितना भी ट्रालियों में कूड़ा करकट अलाइशें वगैरह ले जाई गई शहर से गुजरती हुई, उनके ऊपर तरपालें ढकी हुई थी और इतना बेहतरीन साफ़ सफाई का निज़ाम बनाया और हमारे शहर को एक मिसाली शहर बना दिया गया। हम इन पर बड़ा खुश हैं, बहुत राजी हैं। मेरा इनको सलाम। जी, शहर से जो काम करवाने के लिए बल्दिया में आए हुए लोगों से जब हमने पूछा तो इनका यही कहना है कि डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी मियां रफ़ीक हसन और सीओ बल्दिया रो नईम खालिद और एसी बिहाड़ी ने बहुत अच्छा काम किया है। सफाई सुथराई के हवाले से शहर को साफ़ सुथरा रखा है और इस वक्त भी जो अलाइशें इन्होंने इकट्ठी की हैं वो मिट्टी के नीचे दबा दी गई हैं। जी, मोहम्मद मुमताज़, मेट्रो 1 न्यूज़, बिहाड़ी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी बताएं कि चकवाल बारिश के बायस शहर भर में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहर की अहम शाहराहों समेत गली महलों की सड़कें भी पानी से भर गई हैं। इंतजामी की गफलत से निकासी आब का कोई इंतजाम नहीं किया गया। चकवाल शहर में बारिश से सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है और शहरियों को निकासी आब न होने से परेशानी का सामना है। शहर की कुछ सड़क पर बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया है और ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई है। अहम शाहराहों पर पानी जमा होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं और गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को सड़क पर परेशानी से दो चार होना पड़ा। शहरियों का कहना था निकासी आब का इंतजाम न होने से सड़कों पर पानी जमा है। थोड़ी सी बारिश ने इंतजामी की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। सियालकोट और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश के बाद निकासी आब का निज़ाम मफलूज होकर रह गया, जबकि धान की फसल के काश्तकार इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। सियालकोट और गिरदनवा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, जहां शहर में निकासी आब न होने की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है, वहीं धान की फसल काश्त करने वाले काश्तकार खुश दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला आइंदा 10 से 12 घंटे तक वफ़े से जारी रहने का इम्कान है। मंडी, बहाउद्दीन शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के बायस निकासी आब का निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। सड़कें कीचड़ ज़दा पानी में डूब गई हैं, कई फीट नदी नालों में तब्दील हो गई। मंडी, बहाउद्दीन और गिरदोनवा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और निकासी आब न होने की वजह से जेल रोड, थाना रोड, कॉलेज चौक, फालिया रोड, मंडी, बहाउद्दीन चौक, खारिया रोड, रसूल रोड, रहमानपुरा और खुसूसन बासु रोड की सड़कों पर कई फीट पानी खड़ा हो गया है। गलियां और सड़कें कीचड़ ज़दा गंदे पानी में तब्दील हो गई हैं और शहर में निकासी आब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया। बारिश से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई और शहरों को परेशानी का सामना करना पड़ा और शहरी निकास न होने से घरों में महसूर होकर रह गए। कनकोट में सड़कें और गलियां तालाबों की शक्ल इख्तियार कर गई। नालों की सफाई ना हो सकी, गली शेर मोहल्ला की रिहायशी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने बेत रोड के मकाम पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने जिला म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि बारिश को 3 दिन गुजर कर शिकायत के बावजूद निकासी आब के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। बारिश और सीवरेज का पानी खड़ा होने से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
खबर शामिल करेंगे तौसा शरीफ से। तौसा शरीफ जड़ लगारी पुल बनने से पहले पिलर पानी में डूब गया। 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला पुल टूटने का खतरा बढ़ गया है। मकामी शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि 70 साल से हम इस पुल का हर दौरे हुकूमत में मुतालबा करते आए हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तान ने हमारा देरीना मुतालबा पूरा करते हुए पुल की मंजूरी दी तो पूरे इलाके में जश्न का समा था। लेकिन इस पुल की जब तामीरात शुरू हुई तो उस दिन से नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता रहा। अब जब पुल के पिलर बने तो थोड़ा सा पानी आने पर डूब गए। अभी तो पानी की आमद नहीं हुई तो ये सूरत हाल है। हर साल यहाँ पर सैलाबी रेले आते हैं, ये तो पहले ही सैलाबी रेले में बह जाएगी। इसके न सिर्फ पिलर ऊंचे किए जाएं बल्कि अच्छा मटेरियल भी इस्तेमाल किया जाए। कश्मीर गुड्डू बैराज में पानी की सूरत हाल। मुल्क में तूफानी बारिशों ने दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर एक बार फिर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद पेट्रोवर न्यूज के नुमाइंदे नादिर अली से। जी नादिर अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में हालिया तूफानी बारिशों के बायस दरियाए सिंध गुड्डू बिराज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए सिंध गुड्डू बिराज के मकाम पर। गुड्डू बिराज में ताज़ा तरीन सूरत हाल से मैं आपको आगाह करता चलूँ कि गुड्डू बिराज में पानी की आमद 1,56,212 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि गुड्डू बिराज से पानी का अखराज 1,22,961 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। मैं आपको मजीद भी बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से 14 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक जो है बारिशों का एक बेहतरीन स्पेल जो है पाकिस्तान में दाखिल होगा और उन्होंने भी बारिशों की नवीद सुना दी है। और उसके साथ साथ मैं आपको मजीद बताता चलूं कि महकमा इरिगेशन इंतजामिया की जानिब से कच्चे के रहायशियों को भी अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है, ताकि ना खुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। और कंट्रोल रूम के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान दरिया सिंध गुड्डू बिराज में पानी की सतह में मजीद इजाफे की भी मुतवक्के है। जी खबर शामिल करेंगे कहरोल पक्का से। आपको बताएं कि कहरोल पक्का के नवाही इलाके में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया है, जिसमें नौजवान मौके पर जाँ बहक हो गया। वर्षा ने मुखालिफिन के घरों को आग लगा दी। उमर हबीब को सीने पर गोली लगी, जिसकी वजह से वो मौके पर जाँ बहक हो गया। वर्षा डोगर बरादरी के मुश्तइल अफराद ने 4 दुकानों समेत 3 घरों को आग लगा दी। मुश्तइल अफराद घरों और दुकानों का सामान बाहर निकालते रहे और पेट्रोल छिड़क कर आग लगाते रहे। घरों के दरवाजे भी तोड़ दिए गए। आग लगने से घर में मौजूद तमाम सामान जलकर राख हो गया। मुश्तइल अफराद ने घर में खड़े ट्रैक्टर को भी आग लगा दी। रेस्क्यू टीमों ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझा रहे थे कि उस वक्त पुलिस की भी भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। डीएसपी अफजाल खान इलाके की नाकाबंदी करा के सर्च ऑपरेशन के जरिए 8 अफराद को गिरफ्तार करके लेकर वाकई की इत्तला मिलते ही आरपीओ मुल्तान राजा रिफत मुख्तियार, कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खट्टक के हमरा कहरोल पक्का का दौरा किया। आरपीओ मुल्तान ने कच्छीवाला में 2 ग्रुपों के तसादुम में होने वाले वाकयात का जायजा लिया। बैनुल अजलाई डकैत गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की गई। थाना सराय मुगल पुलिस ने पेशावराना महारत से डकैत गैंग के सरगना अहमद उर्फ सदी समेत उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने डकैत गैंग के कब्जे से दौरान वारदात छीना गया माल मसरूका, जिनमें 9 मोटरसाइकिल, 1 ट्रैक्टर, लाख रुपए नकद और भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया। डीएसपी सर्कल पतोकी सिकंदर महमूद के मुताबिक डकैत गैंग के अरकान कसूर पुलिस समेत मुख्तलिफ अजला की पुलिस को भी दर्जनों संगीन नोयत के मुकदमात में मतलूब थे। डकैत गैंग के गिरफ्तार मुलजिमान ने मजीद तफ्तीश की जा रही है। एएसपी सदर सर्किल अजहर जावेद की खुसूसी हिदायत पर एसएचओ थाना सदर कसूर मलिक किफायत हुसैन खोकर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बदनामी जमाना मनशियात फरोश गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। कसूर थाना सदर पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। थाना सदर कसूर पुलिस ने बदनामी जमाना मनशियात फरोश बाबर के कब्जे से 2 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। एसएचओ मलिक किफायत हुसैन का कहना है कि मनशियात फरोश माशरे का नासूर हैं, उनका खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है। फैसलाबाद में महकमा सेहत के मुलाजमीन अस्पताल में शराब फरोख्त करते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं फैसलाबाद से मोहम्मद रिजवान आजिज की रिपोर्ट।
फैसला आबाद में महकमा सेहत के मुलाजमीन मुबैना तौर पर शराब फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बुनियादी मरकज सेहत चक नंबर 453 गाफबे में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले महकमा सेहत के मुलाजमीन शराब फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं और मुबैना तौर पर पुलिस स्टेशन गढ़ की पुलिस ने उनको शराब फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बताते चले कि मज़कूरा मुलाजमीन अस्पताल में ही शराब कशीद करते और फरोख्त करते थे। गिरफ्तार शुदा मुलजमान में शहजाद अरशद बलोच और अली हसन शामिल हैं, जबकि अरशद बलोच सरकारी अस्पताल में दर्जा चारम का मुलाजिम भी है और गढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात की दफात के तहत मुकदमा का इंदराज भी कर दिया है। कैमरामैन मलक मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, मेट्रो 1 न्यूज़, फैसलाबाद। और अभी पाकपतन से खबर शामिल करेंगे। पाकपतन म्यूनिसिपल कमेटी पाकपतन की जानिब से फ्लैग मार्च ईद उल अज़हा 2022 का इनेकाद किया गया। पाकपतन म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान और मुलाजमीन की जानिब से ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई के हवाले से वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें मियां नवीद अली MPA पाकपतन, असिस्टेंट कमिश्नर शर्जील शाहिद गुज्जर, ADCGR माहा मासिफ, चीफ ऑफिसर जावेद असलम, सैनिटरी इंस्पेक्टर मोहम्मद अतीक भट्ट, मेहर मुस्तफ़ा, एजाज खान और बल्दिया मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर मियां नवीद अली और चीफ ऑफिसर का कहना था कि शहर फरीद को साफ सुथरा रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। सेक्रेटरी बल्दियात इमरान सिकंदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट राना फजल अब्बास खान और CEO म्यूनसिपल कमेटी तारिक जावेद कंबो की ज़ेर निगरानी कमेटी वर्कर्स के लिए एक वॉक का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से मज़ीद जानते मोहम्मद अरसलान कादरी के इस रिपोर्ट में। शोरकोट सेक्रेटरी बल्दियात इमरान सिकंदर की हिदायत और असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट राना फजल अब्बास, CEO म्यूनसिपल कमेटी तारिक जावेद कंबो की ज़ेर निगरानी कमेटी के अमला के काम को सराहते हुए एक वॉक का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद ईद कुर्बान के मौका पर छोटे वर्करों के काम को सराहना था, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए शोरकोट को इंतहाई साफ सुथरा रखने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। इस मौका पर CEO म्यूनसिपल कमेटी तारिक जावेद कंबो का कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपको मालूम है कि ईद के पहले रोज़ से म्यूनसिपल कमेटी ने अपने सैनिटरी वर्कर और तमाम मशीनरी के साथ अलाइशों को उठाने और दफन करने के लिए काम शुरू कर दिया था। कल जनाब सेक्रेटरी साहब ने हमारी मीटिंग के दौरान हमें ये बताया है कि आपने थर्ड डे अब अपनी पब्लिक को, अपने शहर को, अपने आवाम को ये मैसेज देना है कि हमने शहर को अलाइशों से पाक किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरा अमला ने दिन रात जाफशानी से काम करके शोरकोट शहर को अलाइशों से पाक करके एक पुरफज़ा माहौल फराहम किया है। आप तमाम दोस्तों का, मीडिया वालों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हर रोज़ हमारे साथ कवरेज किया और हमारा साथ दिया। शुक्रिया। वाक के इख्तिताम पर CEO म्यूनसिपल कमेटी तारिक जावेद कंबो की जानिब से अपने वर्करों को पुरतकल्लुफ़ लंच भी करवाया गया। कैमरामैन आमिर शब्बीर के साथ मोहम्मद अरसलान कादरी, मेट्रो 1 न्यूज़, शोरकोट। खबर शामिल करें कि उमरकोट से उमरकोट की तहसील कंटी में नौजवान की फंदाला की लाश बरामद हुई है। 32 साला जाहिद ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। नौजवान कंट्री के महल्ले अमीराबाद का रिहायशी था और एक 7 साला बेटी का बाप था। पुलिस के मुताबिक नौजवान कमीशन शॉप पर मुंशी का काम करता था। नौजवान ने ऑफिस की छत में लगे पंखे से रस्सी बांधकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुताल्लिक अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पुलिस मजीद कानूनी कार्रवाई कर रही है। THQ अस्पताल दीपालपुर में नर्सिंग स्टाफ ने एहतजाजन तमाम वार्ड्स में काम बंद कर दिया। एहतजाज मेडिकल सुपरिटेंडेंट के हद तक अमेज सलूक पर किया जा रहा है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में MS के हद तक अमेज रवैये पर नर्सिंग स्टाफ ने तमाम मेडिकल वार्ड्स में एहतजाजन काम बंद कर दिया। MS डॉक्टर नईम अता ने नर्सिंग स्टाफ से नामुनासिब रवैया मामूली बना दिया। खवातीन को मुख्तलिफ तरीकों से हिरासा और परेशान किया जाता है। नर्सिंग स्टाफ ने THQ अस्पताल में MS मुखालिफ नारेबाजी की और MS दफ्तर का घेराव कर लिया। स्टाफ ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि बदतमीजी के मुर्तकिब MS काफी फिलफोर तबादला किया जाए। ठीक है, और ये बंदा जब भी आता है ना, इसका बिहेवियर यही होता है। सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बाकी आप नर्सिंग से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी भी पुलिस जल्दी से चल कर लो। पहले ऑफिस में आई के सामने इस तरह एडमिट हूँ, मुझे उन्होंने बात सुनने की बजाय ये कहा इधर से निकल जाए, चले चले निकले बाहर चले। इस तरह का उसका रवैया है हमारे साथ। हम भी आया कि फीमेल है, उसके अलावा इमरजेंसी में अभी जाके देख लें फीमेल।
जिला इंतजामिया खानेवाल का ईद सफाई ऑपरेशन कामयाबी से हमकनार हुआ। डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद की ज़ेर निगरानी लोकल गवर्नमेंट्स की जानिब से खुसूसी ऑपरेशन के अख्तामी औकात में खुसूसी फ्लैग मार्च किया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद ने म्यूनिसिपल कमेटी खानेवाल के फ्लैग मार्च की क़यादत की। डिप्टी कमिश्नर ने एडमिनिस्ट्रेटर उमर इफ्तिखार शिराजी के हमरा वर्कर से मुलाकात की, उन्हें शाबाश दी और मिठाई तकसीम की। खानेवाल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना माहौल के फरोग के लिए खानेवाल के निजी होटल में डॉक्टर्स की जानिब से सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद, ADC अख्तर मंडेला और खानेवाल से। देखते हैं काशिफ हबीब की रिपोर्ट। निजी होटल में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टरों के दरमियान दोस्ताना माहौल के फरोग के लिए सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में MSDH अस्पताल खानेवाल डॉक्टर हमारा सिविल डॉक्टर अरशद मलिक, डॉक्टर अब्दुल कादिर अवान, डॉक्टर जाहिद महमूद खान, डॉक्टर जमील गौरी, डॉक्टर हफीज समेत DHQ अस्पताल और जिला बर्ज शोबा सेहत से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज PMA ने ज़िला भर के तमाम जूनियर और सीनियर डॉक्टर्स का एक खूबसूरत इज्तिमा मुनक़्क़द किया है। उस इज्तिमा में हमने आपस में मिल बैठ के एक दूसरे के मसाइल को डिस्कस किया है। हमने ये डिस्कस किया है कि हम इस ज़िला खानेवाल के अवाम को मैक्सिमम सहूलियात कैसे फराहम कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर भाइयों ने इस सिलसिले में एक शानदार कदम उठाया है कि वो एक पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स और शहर भर के मुखय्यर हजरात मिल के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए एक गवर्नमेंट के साथ मिल के एक इदारा कायम करेंगे जो कि गरीब लोगों के तिबी मसाइल को हल करने के लिए उनकी मदद करेगा। हम इस सिलसिले में इनके तहे दिल से मशकूर हैं। सेमिनार में डॉक्टरों ने इस बात का यकीन दिलाया कि हम डॉक्टर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के शाना बशाना हर हाल में उनके साथ हैं और अस्पताल में आने वाले मरीजों को अपनी अवलिन तरजीहात और दस्तियाब वसाइल के मुताबिक मरीजों को तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टरों के माबैन पैदा होने वाली गलत फहमियाँ पैदा न हो। जनरल सेक्रेटरी PMA डॉक्टर जाहिद महमूद खान ने और तमाम डॉक्टरों ने सेमिनार के फार्म पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ काशिफ हबीब, मेट्रो 1 न्यूज़ खानेवाल। खबर शामिल करेंगे कश्मीर से। कश्मीर की तहसील तंगवानी से अगवा होने वाले 3 साल कमसिन बच्चे समेत 4 मुख्तियों को पुलिस ताहल डाकुओं से बाजियाब नहीं कर पा सकी। इस हवाले से मजीद देखते हैं मोहम्मद इस्माइल चाचड़ की इस रिपोर्ट में। जिला कश्मीर में अगवा और गैरत के नाम पर कत्ल की वारदातें थम न सकी। एक हफ्ते में 3 साल कमसन मासूम बच्चे के समेत 4 अफराद अगवा। तिगवानी से अगवा होने वाले कमसन बच्चे को 2 हफ्ते गुजर गए मगर पुलिस बच्चे का कोई सुराख ना लगा सकी और न ही 1 हफ्ते कबल गुलबो थाने को हदूद से अगवा होने वाले हिस्सासीदारों के 3 एहलकारों को बाजियाब करवा सका। पुलिस के ऑपरेशन भी काम ना आए। तंगवानी से अगवा होने वाले कमसन बच्चे के अगवा का नोटिस वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ले लिया और सूबाई वजीर मीर शबीर अली बेजरानी, साबिक MPA सरदार महबूब अली बेजरानी वफद के साथ मासूम बच्चे के घर पहुंचे और बच्चे को बाहिफाज़त बाजियाब करवाने की यकीन दहानी करवाई। मीडिया से बात करते हुए कहा, हिकु त दरिंदा माण्हू आहिनि जंहिंखे एहसास ई कोन्हे त नंढड़ो 3 सालनि जो मासूम ॿार पंहिंजे वालिदैन खां एतिरा ॾींहं जुदा करे रखणु ही इंसानियत न आहे, ही दरिंदगी आहे। मां हिन शइ खे कॉन्डेम बि कयां थो ऐं मां इन करे अॼु हिननि जे वालिदैन जे घर हाज़िर थियो आहियां त मूंखे पाण खे दिली ॾुख ऐं रंज आहे, छो जो असां पाण औलाद वारा आहियूं। असांखे अहसास आहे त औलाद जे खॼण खां पोइ, अगवा थियण खां पोइ घर में कहिड़ो कोराम ऐं कहिड़ो मातम हूंदो आहे। त मुंहिंजे सरदार महबूब अली ख़ान जी, मुंहिंजे सॼे ख़ानदान जूं हमदर्दियूं बखराणी ख़ानदान सां आहिनि, मास्टर अली गौर जे घर सां आहिनि ऐं असां कोशिशि कयूं था त जेतिरो जल्द अज़ जल्द नंढड़ो असांजो ये बाज़ियाब थिए, पंहिंजे घर में अचे। इसके अलावा SSP शिकारपुर तनवीर तुंजो ने भी बच्चे के मासूम बच्चों के वरसा के पास पहुंचकर तफसीलात ली हैं और जल्द बच्चे की बाजियाब करवाने की यकीन दहानी करवाई। मीडिया से बात करते हुए कहा कि खपे एक नंढड़ो मासूम ॿार ऐं असीं सभई उन ॾुख में पूरी सिंध पुलिस जेको आहे हिननि सां गॾु आहे। असीं ॾींहं राति जेको आहे न सिर्फ़ु कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बल्कि शिकारपुर जूं मां स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट कयूं। हे उहे टीमूं न आहिनि जो सिर्फ़ु नाले मां अथव, पर हिकु मां हिकिड़ो टास्क ॾिनो आहे, उन सां अॼु कमु कयो आहे हिननि। असांखे थोरो घणो सर्चिंग कराइणी उहा हिननि कई आहे। उन खां अलावा जदीद जेका टेक्नोलॉजी आहे उहा बि असां यूज़ कयूं पिया। हिन में इंशाल्लाह उमेदु आहे त हिन ॿार जी रिकवरी थींदी।
मगर बातें बातों तक रह गए। अभी तक मासूम बच्चा डाकुओं के चुंगल से आज़ाद नहीं हो सका। दूसरे जाने मुख्तलिफ सियासी समाजी मजहबी तंजीमों की जानिब से मुसलसिल कंदकोट, कश्मीर और शिकार तंगवानी में एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ईद के पहले दिन एडवोकेट अब्दुल गनी बेजरानी की क़यादत में सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और ईद के दूसरे रोज़ जमात इस्लामी के जानिब से बच्चे की बाजियाबी के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ईद के तीसरे रोज़ STP के जानिब से बच्चे की बाजियाबी के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कमसन बच्चे के घर में क़यामत बर्पा हो गई और ईद की खुशियां भी अधूरी रह गई हैं। गरीब बेसहारा वर्षा का ज़िले इंतजामिया, SSP शिकारपुर, DIG लाड़काना, IG सिंध और दीगर आला हुक्काम और आला इदारों से बच्चे की बाजियाबी के लिए हाथ बांधकर मुतालबा। सिंध के दीगर शहरों की तरह घोट के मीरपुर, माथेरो और धरकी में भी हैदराबाद होटल पर होने वाले वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। कौम परस्त रहनुमा और कारकुनों की जानिब से घोट के मिसाल चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। धरकी और मीरपुर, माथेरो में एहतजाजी रैली समेत धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। और अभी खबर शामिल करेंगे ठुल से। ठुल में हैदराबाद में बेदर्दी से कत्ल होने वाले नौजवान बिलाल काका के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नबी बख्श बलूच से। जी नबी बख्श बलूच, आगाह कीजिएगा। हैदराबाद में बिलाल काका को बेदर्दी से अफगानी के हाथों कत्ल किया गया। आज ठुल प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज बने हुए। मस्जिद उनसे पूछे उनका क्या कहना है। पूरे सिंध के लोगों ने देखा कि एक निहत्ते नौजवान को पठान दहशतगर्दों ने होटल पे बैठे हुए निहत्ते नौजवान पे कैसे गोलियां बरसाई, कैसे 25-30 गुंडे आए और वहाँ होटल में पहले से असला मौजूद था। ये पठान जो दहशतगर्द हैं ये होटल नहीं चलाते, यहाँ कारोबार नहीं करते, यहाँ असला बेचते हैं, मंशियात का कारोबार करते हैं। कल आपने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने सोशल मीडिया के जरिए देखा कि एक निहत्थे सिंधी नौजवान को गोलियां बरसाकर पुलिस के सामने कत्ल किया जा रहा है, लेकिन वहां खड़ी हुई पुलिस तमाशा देख रही है, उन पठानों को गिरफ्तार करने की जहमत नहीं कर रही है। आज हमारे एहतजाज में हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि बिलाल काका के जो भी कातिल हैं, जितने भी उस कत्ल में मुलविस है पठान, उन सबको गिरफ्तार करके उनको मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, नहीं तो इस एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। दिन हमारे धरती पे जो धारी आबादगारी है, धारे हमारे ऊपर काबिज हो रहे हैं और उनको गवर्नमेंट जो है ना फुल अख्तियार दे चुकी है कि आपको जो करना है आप करो। इतना जुल्म तो बर्मा में या फ़लस्तीन में भी नहीं हो रहा। क्या पठान जाके दुबई में या सऊदी अरब में किसी अरब को ऐसे मारेगा? सवाल ही पैदा नहीं है। हमारे साथ पाकिस्तान आज़ाद होने से आज तक सिर्फ जुल्म ही होता आ रहा है। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। अगर मजम्मत से काम नहीं हुआ तो हम मजामत भी करेंगे। हम मजामत करने के लिए भी तैयार हैं। अगर एक जुल्म ज़्यादा होता रहा और नाइंसाफ़ी बंद नहीं हुई तो हम मजम्मत को छोड़कर मजामत का रास्ता भी अख्तियार कर लेंगे। कसूर में जानवरों को लगने वाली लंपी नाम की बीमारी ने पंजे गाड़ लिए। कसूर के सरहदी गांव चंदासक समेत मुतादिद देहातों में वायरस फैलने लगा है। गायों और बछड़ों के जिस्म पर गहरे निशान और बुखार में मुब्तला करने वाली बीमारी से मवेशी मुतासर हो गए। मवेशी मालकान का कहना था कि महकमा लाइफ स्टॉक मवेशियों को वायरस से बचाने में नाकाम है। लंपी से मुतासरा कई मवेशी कुर्बानी के लिए फरोख्त नहीं हो सके, जो हमें नाकाबिल तलाफी खसारे का सामना करना पड़ा है। खुदारा हमारी मदद की जाए। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।